ابتدا ہے رب دل کا بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ آج کا دن ناظرین انسانی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن تاریخ کے پہلو بدل جاتے ہیں، آج کے دن تاریخ کا نظام بدل جاتا ہے، آج کے دن لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، آج کے دن ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک لکیر کھینچی جاتی ہے، آج کے دن آجر اور اجیر کے درمیان ایک تفریق قائم ہو جاتی ہے، آج کے دن مظلوم اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، آج کے دن ظالم مظلوم پر ظلم کرنے کی تاریخ سے 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کے دن ایکتا، اکٹھ، اتحاد، اتفاق، تنظیم اور یقین محکم جو ہیں وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ آج کے دن ایک عام آدمی اپنی عزت نفس کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، آج کے دن ایک عام شخص، ایک عام آدمی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، آج کے دن ایک عام آدمی اپنے حق کے لیے اپنی دبی ہوئی آواز کو بلند کرتا ہے، آج کے دن بے زبانوں کو زبان مل جاتی ہے۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں یوم مئی کی، 1 مئی کی، جس کو لیبر ڈے کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے اور جس کو مزدوروں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ کا آغاز میں ایک سچی کہانی سے کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی کہانی جس کا میں آئی وٹنس ہوں، ایک ایسی کہانی جس میں نے بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا یا زیادہ کردار ادا کیا ہوا ہے۔ ایک دوست جو اپنی انڈسٹری کا مالک تھا، جس کے پاس درجنوں کی تعداد میں مزدور کام کرتے تھے، ایک دوست جو معاشی طور پر بہت خوشحال تھا، ایک دوست جس کے پاس بینک بیلنس کی، گاڑیوں کی کمی نہ تھی، اچانک ایک حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس حادثہ کے بعد وہ اپنی ساری دولت، اپنی ساری جمع پونجی، اپنی ساری انویسٹمنٹ جو اس نے کاروبار میں کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے علاج پر لگانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاتی ہے اور وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی کے دن گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا والد اور اس کی والدہ، جنہیں اس نے اپنی زندگی میں بے پناہ عزت دی ہوتی ہے، جب بات فاقوں پر پہنچتی ہے تو پھر بزرگ باپ جو ہے وہ محنت مزدوری کی تلاش میں ایک بار پھر نکل پڑتا ہے۔ یہ اس کی محنت مزدوری کا دوسرا فیز جانا اور سمجھا جائے گا۔ پہلے فیز میں اس نے اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے، پرورش کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ محنت اور لگن سے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا بیٹا اپنی کاروباری زندگی میں آتا ہے تو وہ اپنے والدین کو سکھ دینے کے لیے، اپنے والدین کو عزت دینے کے لیے، اپنے والدین کو خوشی دینے کے لیے انہیں گھر پہ بٹھاتا ہے اور ان کی ساری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جب گھر میں فاقے آتے ہیں تو پھر وہ اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن باپ چونکہ باپ ہوتا ہے وہ پھر سے محنت مزدوری کے لیے نکل پڑتا ہے۔ میرے ہی ایک دوست کے پاس جا کر وہ اپنی محنت مزدوری کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک روز میں وہاں پر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے مزدور کام کرنے والے چلے گئے ہیں، لیکن ایک بزرگ ابھی تک وہاں پر کام میں مشغول ہے۔ چونکہ دور سے میں نے دیکھا تھا، مجھے پہچان نہ تھی، تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا
कि ये शख्स अभी तक काम कर रहा है जबकि बाकी मज़दूर जा चुके हैं। तो उसने बताया कि ये बंदा ओवर टाइम लगाता है। मैंने उससे कहा कि इस उम्र में ये ओवर टाइम लगाता है? तो उसने कहा कि इसका एक जवान बेटा किसी हादसा की वजह से बिस्तर पर आन पड़ा है, तो इसे उसकी मेडिकेशन के साथ साथ घर का निज़ाम चलाने के लिए भी वसाइल की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से ज़्यादा काम करता है और मैं भी अपनी खुशी से इसे कुछ ज़्यादा उजरत दे देता हूँ ताकि ना इसका दिल दुखे और ना ही इसकी इज़्ज़त नफ्स पर किसी किस्म की ठेस आए। जब मैं करीब जाके उस बुज़ुर्ग शख्स को देखता हूँ तो वो मेरे दोस्त के वालिद साहब होते हैं और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके दोस्त के साथ पिछले 2-3 साल से इतना बड़ा हादसा हो गया और अब वो बिस्तर पर है, चल फिर नहीं सकता, लिहाजा फिर मुझे उसकी देखभाल करने की एक बार फिर खुदा ने ज़िम्मेदारी दी है और मैं फिर दोबारा से मैदान अमल में आ गया हूँ ताकि अपने बेटे की मेडिकेशन कर सकूँ और अपने ख़ानदान की देखभाल कर सकूँ। नाज़रीन, आपको ये बात बताने का मतलब और मकसद ये है कि बाप से बड़ा मज़दूर कोई नहीं है, इसका उम्र के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है। हर बाप अपनी औलाद के लिए हर किस्म की मेहनत और मज़दूरी करने के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो हम इस बात को अगर गौर से समझने की कोशिश करें तो जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदाए कुदूस बुज़ुर्गो बरतर ने हर एक चीज़ को अपने हाथ से बनाया, अपने मुंह के कलाम से तख्लीक किया, मतलब एक एनर्जी इस्तेमाल की, एफर्ट की, काम किया। इस दुनिया में हर कोई, खा वो अमीर है गरीब, खा वो पढ़ा लिखा है अनपढ़, खा उसका ताल्लुक़ किसी ज़िम्मेदार घराने से है या वो फिर किसी मज़दूर का बेटा है, सब इंसान अपनी अपनी जगह पे मेहनत मज़दूरी करते हैं। लेकिन इसी निज़ाम के अंदर कहीं पे जागीरदाराना निज़ाम आ जाता है, कहीं पे तजारत का निज़ाम आ जाता है, सनत का निज़ाम आ जाता है। हर जगह पर एक मालिक होता है और एक नौकर होता है, पर जो मालिक होता है उसकी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, जो नौकर होता है उसकी भी ज़िम्मेदारियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो मालिक होता है, अकेला मालिक सैकड़ों हज़ारों लोगों के हाथों की मेहनत को अकेला एंजॉय करता है, जबकि अकेले मालिक के लिए दर्जनों, सैकड़ों और हज़ारों लोग मेहनत करते हैं। फ़र्क है दोनों के काम करने में। लेकिन जब कहीं पे नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, जब किसी आजर को उसकी उजरत नहीं मिलती, जब किसी मज़दूर को उसका मुआवजा नहीं मिलता, जब किसी काम करने वाले को उसके काम की तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, मुआवजा नहीं मिलता, तो फिर उसकी बर्दाश्त का लेवल जो है वो भी बदल जाता है। तारीख़ी लिहाज से हम मगर देखें तो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया 18वीं-19वीं सदी के दरमियान, जिसमें यही एक मसला दरपेश था। जब लोगों को उजरत करने के लिए हायर तो कर लिया जाता, लेकिन उनके लिए उजरत या मुआवजा जो दिया जाता उसका तयन ना होता, या फिर जो काम करने के उनके आवर्स थे, जो उनके काम करने की मियाद थी वो भी तय नहीं थी।
लोगों को इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। ये निज़ाम, ज़ालिमाना निज़ाम, जब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर आने लगा तो लोग इस निज़ाम से बागी होना शुरू हो गए। और फिर 1 मई आज के दिन 1886 अमेरिका के एक शहर शिकागो में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में मज़दूर सड़कों पर निकल आए अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, अपने हकूक़ का तयन करने के लिए। और फिर हे मार्केट अफेयर शिकागो में धमाका कर दिया जाता है, फायरिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से लातादाद मज़दूर जो हैं ज़ख्मी होते हैं, शहीद होते हैं, अपनी जानों का नजराना दे देते हैं। लेकिन आज अगर हम खून से सुर्ख सड़कों पर बहे जाने वाले खून को याद करते हैं और उन शोहदा को जिन्होंने अपने हकूक़ के हसूल की खातिर अपनी अपनी जान का नजराना दिया, हम उन्हें सुरख सलाम पेश करते हैं। जी नाजरीन, ये वाक़या जो रूनमा होता है, आज तक जो मज़दूर तबका इससे फ़ायदा उठा रहा है, इसके पीछे कुर्बानियों की एक तवील दास्तान मौजूद है। आज भी बहुत सी जगहों पे जबरी मेहनत और मुशक्क़त ली जाती है। आज भी बहुत सी जगहों पे मज़दूरों के हकूक़ का इस्तेहसाल होता है। आज भी बहुत से इलाकों में, बहुत सी जगहों में, बहुत से शहरों में आज भी मज़दूरों को ग़ुलाम बना कर रखा जाता है। लेकिन शिकागो के मज़दूरों ने, अमेरिका के मज़दूरों ने अपने हकूक़ की जंग लड़के, अपनी जानों का नजराना दे के और अपने जिस्मों पर लातादाद ज़ख्मों के दर्द सहकर एक नई दास्तान रकम कर दी। और फिर इसी जुलूस, इसी एजिटेशन, एहतजाज की बुनियाद पर फिर मज़दूरों के चार्टर लिखे जाना शुरू हुए, उनकी मज़दूरी का तयन होना शुरू हुआ, उनके औकाते कार का तयन होना शुरू हुआ। और आज मज़दूरों को जो बहुत से हकूक़ हासिल हैं, इसके लिए शिकागो के मज़दूरों का खून शामिल है। लेबर लॉज हैं, सोशल वेलफेयर के कवानीन हैं और मज़दूरों की सेहत के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए बेशुमार ऐसे अदारे वजूद में आ चुके हैं, जिनकी वजह से कोई मज़दूर जो है वो अपने आप को बाइज़्ज़त और बावकार समझना शुरू होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अभी तक जालिम और मजलूम का खेल जारी है। अभी तक आजर और अजीर के दरमियान एक रिफ्ट, एक जो लकीर है वो बाकी है। लेकिन बहुत सी जगहों पर इस चार्टर की रोशनी में 1 मई के हवाले से मज़दूरों के इकट्ठ होते हैं और वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। बहुत से मज़दूर यूनियंस के जो लीडरान हैं, उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ भी हुई। मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीमों को भी दबाया गया। मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले अफराद को भी जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर किसी को उसका हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में मिसाल की किताब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर मज़दूर के लिए, काम करने वाले के लिए बेशुमार ऐसी आयात मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसे लोगों को खिदमत के लिए चुना जो
मेहनत और मजदूरी करने वाले लोग थे। और जब हम कुरान पाक में देखते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि अल-कासबुल हबीबल्लाह, काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। काम करने में बड़ी इज्जत है, काम करने में बड़ी अजमत है, लेकिन ये भी वाजिब है कि मजदूरी करने वाले को उसकी मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। लेकिन आज भी बहुत सी जगहों पे तासुब बरता जाता है, आज भी बहुत से लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है, लेकिन ये वक्त बदल जाएगा। एक खूबसूरत बात जो मैं एक मज़दूर में और मज़दूरों का हक खाने वाले में मैं जो बहुत जगहों पर ये बात करता हूँ कि जो मज़दूर होता है वो अपनी मज़दूरी से, अपने काम से इतना मुतमईन होता है कि वो रात को आराम से सो जाता है। लेकिन जो उनके हकूक़ खाने वाला है उसको सोने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात का सहारा लेना पड़ता है। इस निस्बत से किसी शायर ने बड़ा खूब एक शेर लिखा कि फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछाकर, फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं लेता। नाज़रीन, आज के इस ख़ास दिन के हवाले से, जबकि पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हम अपने चैनल द ट्रुथ न्यूज़ की जानिब से, TTN की जानिब से, अपने पूरे स्टाफ की जानिब से दुनिया के तमाम मज़दूरों को सलाम पेश करते हैं। और हम अपने इस नेटवर्क, अपने इस चैनल से ये ऐलान करते हैं कि अगर किसी मज़दूर के साथ किसी किस्म की ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, उसके मुआवजे की सूरत में, उसके वक्त के दौरानिये की सूरत में, हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए हाज़िर है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर रब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप हमारा दफ्तर विज़िट कर सकते हैं, चैनल विज़िट कर सकते हैं। आप अपनी कोई बात अगर किसी अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, आप यहां पर आकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आज के दिन मज़दूरों के आलमी दिन के मौका पर हम अपनी नशरियात में आपको हर किस्म की बात करने के लिए, अपने हकूक़ की बात करने के लिए हम वेलकम करते हैं। आप जब चाहें आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं और आप अपनी बात कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो मज़दूरों के हकूक़ को गस्ब करते हैं, जो उनके हकूक़ पे डाका डालते हैं, उनकी मज़दूरी नहीं देते या उनकी ड्यूरेशन से ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं, हम उनको भी ख़बरदार करते हैं कि वो भी अपने रवैये पर गौर करें और एक आम शख्स को, एक मज़दूर को उसकी मज़दूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए ताकि उसके बच्चों के ख्वाब पूरे हो सकें। फेसबुक पे मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक मज़दूर जिसकी कमर पर ईंटें लदी हुई थीं, वो अपने मालिक को कहता है कि साहब मेरी कमर पे कुछ ईंटें और बढ़ा दो, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने मुझसे किसी ख़ास चीज़ की फरमाइश की है और उसको पूरा करने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, लिहाजा मेरी कमर पर बोझ को और ज़्यादा बढ़ा दो। तो नाज़रीन, ये मज़दूर जो है ये अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए, अपने ख़ानदान के ख्वाब पूरे करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाके मेहनत और लेबर करने के लिए तैयार होता है। एक बार फिर मज़दूरों के आलमी दिन पर तमाम मज़दूरों को सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने ख़ानदान की खुशियों के लिए और ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ और ज़्यादा मेहनत और क़ुव्वत के साथ अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हम आपको भी ये दावत देते हैं कि आप जो भी
اگر آپ مزدور ہیں تو دیانتداری سے مزدوری کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اس کا حق اور اس کے حقوق نہ کھائیں۔ آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی رفاقتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔